Hello, students. Once again, welcome back to the digital platform of Nalanda Vidyalay. Myself, Patel Pritesh, and I welcome all of you for the second terminal syllabus, in which we will start English Literature, chapter number 6, with the title Charlie's Daily Dose of Sunshine. Yes, we have already completed our first terminal syllabus. Now it is the time to start our second terminal syllabus. I hope you all are fit and fine. And yes, we will now start the new chapter. Okay, in this session, in the second session, or we can say the second video, the explanation of textbook, exercise, and grammar thing all will be there. Here we have our explanation of textbook, the story of Charlie, and the whole story that I'm going to explain you right now. So please listen this video and observe this video very carefully. Yes, so let's start the Charlie's daily dose of sunshine. I may ask few questions to you, that have you seen any wild animal? Have you seen any domestic animal? Do you have any difference between these two? Do you find any difference between these two animals, domestic animals and wild animals? Okay, yes, there is a major difference, because wild animals are living, we can say, very far away from us. Okay, they are living in their territory, that is called forest, jungle. And domestic animals that living nearby us, okay, or sometimes you can say with us. Yes, with us also. And we have made many animals, we can say, very we can say पेट लाइक एनिमल्स. पेट मतलब कि जो हम पालतू बनाते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स तो हम पालतू बनाते हैं. बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत सारे एनिमल्स उनके फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं. यस, दे ट्रीट देम लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स. ओके, डॉग है, हॉर्स है, काव है. काव तो हमारी, हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत सालों से हम काव को ट्रीट करते हैं. यस, एज अ गॉडेस, जिसे हम कहते हैं ना, गाय माता, जिसे ऐसे हम ट्रीट करते हैं, तो दैट इज़ एनिमल. ओके, बट बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, let me tell you that we all are also animals, but there is a tag before us, and that is called social animals. All other animals also are there, but they are not social. No, not like that. We have just, we can say, more developed mind, more developed, we can say, our all the senses, okay, more developed than them. Okay, we have our own society, we have our own language, we have our own management. Okay, how to live in systematical way. Okay, they do also have their languages, and they do all also have their groups and societies and their territories, but they are somehow not developed as us. Okay, so first of all, clear is that we are also animal there, but there is a tag before us, that is we are social animals. Okay, so we develop ourselves from all other the animals. Okay, years and years ago. तो धीरे धीरे जो हम ये डेवलपमेंट की पूरी साइकिल की चेन चली, उसमें हम कह सकते हैं कि हम दूसरों से अलग हो गए. ओके, सो वी डेवलप आवर लैंग्वेज, वी डेवलप मैनी मैनी थिंग्स, ओके, ऑन आवर ओन. और दूसरे जो एनिमल्स थे वो पीछे रह गए, क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट की, वो हम कह सकते हैं कि जो साइकिल थी वो उतनी आगे नहीं बढ़ी. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग दैट, सो ऑल आर लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो. ओके, ऑल आर लिविंग थिंग्स. नाउ, लाइक वी हैव द फीलिंग्स, दे हैव ऑल्सो द फीलिंग्स. जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, वैसे ही एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती है. एंड द सेम काइंड ऑफ स्टोरी, ओके ओके, कन्वेड और डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, चार्लीज डेली डोज ऑफ सनशाइन. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि उनकी क्या लाइफ होती है, वो कैसे रहते हैं. ओके, आई थिंक यू ऑब्जर्व मैनी एनिमल्स, मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके, नियर लिविंग नियर बाय यू, लाइक डॉग एंड वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट काउस, बफेलोस. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आप उन्हें ऑब्जर्व भी करते होंगे कई बार कि ओके, हाउ दे लिव. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, लाइक, वी हैव टू ट्रीट देम ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन बींग. वो एक, हम कहेंगे कि एक जिंदा ही है, लेकिन वो हम इंसान नहीं कहते, ह्यूमन नहीं कहते. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम. हमें उनमें उनमें एक ही डिफरेंस है कि वो इंसान नहीं है, वो हमारे जैसे बात नहीं कर सकते, वो हमारे जैसे खाते नहीं है, पीते नहीं है, उठते नहीं, बैठते हैं, कपड़े नहीं पहनते. ओके, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, बट दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. एज आई टोल्ड यू, वो भी जिंदा है, उनको भी सब कुछ महसूस होता है. दे ऑल्सो फील्स एवरीथिंग. अगर उन्हें मारते हैं तो उन्हें दर्द भी होता है. ओके ओके, दे ऑल्सो क्राई. ओके, वो रोते भी हैं. ओके, लेकिन वो हमारे जैसे आवाज़ निकाल के भी नहीं लोग, अलग अलग हम कह सकते हैं उनकी वे होती है. अब
अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने की. सो हियर इन दिस चैप्टर we are going to learn about the animals, few animals. Here we are talking about birds also and animals also. So Charlie is a bird in this story, and we have another character called, yes, if you have written or if you have seen that story earlier somewhere, so we have here one dog and one bird. Okay, that bird is also, we can say, crow. Okay, so let's start this story. But before start this story or chapter, let's have the, yes, explanation of new words that you will face that words in this chapter explanation. तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले से पहले हम जो न्यू वर्ड्स है वो समझ लेते हैं विथ मीनिंग्स. ओके, बेस्ट जो पॉसिबल वे के मीनिंग हैं जिसे आप समझ सकते, तो उस वे से मैंने वो सारे मीनिंग्स लिखे हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. ऐसे चाइल्ड जिनके पेरेंट्स मर गए हैं. ओके, उन्हें ऑर्फन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अनाथ कहते हैं, अनाथ. ओके, देन रेवन, अ लार्ज ब्लैक बर्ड, जिसे हम हमारी भाषा में क्रॉ भी कहते हैं, कौवा जिसे कहते हैं. उसका जो हम कह सकते हैं कि नेम है, उससे जो साइंटिफिक नेम भी कहेंगे उसका नाम है रेवन. ओके, अ लार्ज ब्लैक बर्ड. देन थर्ड वन, सीवर, टू शेक स्लाइटली. हम कह सकते हैं आपको ठंडी लगती है तो आप धीरे धीरे कांपने लगते हैं, ध्रुजने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सीवर. ओके, टू शेक स्लाइटली, स्पेशली बिकॉज यू आर कोल्ड और फ्राइटेंड. फ्राइटेंड का मतलब होता है कि आप घबरा गए हैं, और कोल्ड का मतलब कि आपको सर्दी लग रही है, मतलब आपको ठंडक लग रही है. फोर्थ वन, शेल्टर, और सेफ प्लेस. शेल्टर को अलग अलग हम कह सकते हैं कि कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा घर है वो हमारा शेल्टर है. यस, आवर होम इज शेल्टर फॉर अस. So shelter means a safe place. Next, tame, not violent or aggressive. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स. सो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही वायलेंट होते हैं. मतलब कि वो किसी पे भी हम कह सकते हैं अटैक कर लेते हैं, किसी को भी हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं. लेकिन जो टेम एनिमल्स होते हैं, ओके, जो हम कह सकते हैं बहुत शांत होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते और वायलेंट तो नहीं होते हैं. Okay, so tame, there are the categories of animals according to behavior. Then next, pet, an animal or bird that you keep in your home for pleasure. Yes, आप अपनी कह सकते हैं कि अपनी खुशी के लिए, अपने शौक के लिए, अपने हैबिट के लिए कुछ एनिमल्स को हम कहते हैं कि घर में उनको ट्रीट करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि पेट एनिमल्स. जिसे हम पालतू कहते हैं ना, पालतू जो वर्ड है हम उसे कह सकते हैं कि पेट एनिमल्स. बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि ह्यूमन्स बीइंग उनको फैमिली मेम्बर की जगह देते हैं, बहुत हम कह सकते हैं उनके नेम देते हैं. ओके, तो उनके नेम देना भी हम कह सकते हैं कि एक हैबिट हो चुकी है. ओके, तो पेट एनिमल्स भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो एनिमल्स को लव भी करते हैं. दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द लव ऑफ एनिमल, ओके, दे आर हैविंग द पेट एनिमल्स. उनको बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं. देन swallow, टू मेक फूड, ड्रिंक एक्सेट्रा टू गो डाउन योर थ्रोट टू योर स्टमक. मतलब यहाँ से कोई भी, swallow मीन्स जो हमारे, जो भी हम खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो यहाँ से सीधा नीचे जो हम निकल जाते हैं उसे swallow कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन, worm, अ स्मॉल एनिमल विदाउट आइज, बॉन्स और लेग्स. जिसे शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं कीड़े. कीड़े हैं उन्हें worms कहते हैं. ओके, देन abandoned, होमलेस एंड नो लॉन्गर वांटेड. या तो उनका घर नहीं है या तो फिर वो घर नहीं चाहते. ओके, उन्हें हम कहेंगे abandoned. मतलब उन्हें हम कह सकते हैं कि उन्हें निकाल दिया भी जा सकता है, कि उनके घर में से निकाल देते हैं, तब भी हम उन्हें abandoned कहेंगे. ओके, तो हम कहेंगे कि होमलेस. ओके, या तो ह्यूमन भी हो सकते हैं या तो एनिमल्स भी हो सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन, स्नगल, सेटल इन अ वार्म एंड कंफर्टेबल पोजिशन. सेटल इन अ वार्म एंड कंफर्टेबल पोजिशन, उसे स्नगल कहते हैं. जब किसी को हम कह सकते हैं कि ठंडी लग रही होती है, किसी को हम कह सकते हैं कि डर लग रहा है, तो हम किसी को, एनिमल को, या किसी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को अगर एक कंफर्टेबल जगह पे हम उसे हम कह सकते हैं हग करते हैं, ओके, बिठाते हैं, तो उसे हम स्नगल भी कह सकते हैं. ओके, रिमेंबर दैट वन. देन नेक्स्ट वन इज इमिटेट. इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना. ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब दिस वर्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं
जब आप खाना खाने के लिए ऐसे इशारे करते हैं, ऐसे पानी पीने के लिए ऐसे इशारे जो करते हैं, तो वो इमिटेट करते हैं बच्चे, मतलब वो आपके कॉपी भी करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इमिटेट, मीन्स टू कॉपी। देन बेली लाफ। बेली लाफ का मतलब होता है कि अ डीप लाफ लाउड, जो आप हम कह सकते हैं कि पेट से हम जो कहते हैं ना कि पूरी हम कह सकते हैं कि डीप, बहुत बड़े बड़े आवाज़ से हम जो लाफ करते हैं ना, जो हंसते हैं, उन्हें कहते हैं बेली लाफ। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लॉन, अ पार्ट ऑफ पार्क और गार्डन कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास। पार्क का या गार्डन का एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा, हम कह सकते हैं कि भाग, जो छोटे छोटे घास से कवर किया होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉन, LAWN, लॉन। नेक्स्ट वर्ड इज कोरस। कोरस का सीधा मीनिंग है ग्रुप सॉन्ग, मतलब कि एक ही सॉन्ग बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं, उन्हें कोरस कहते हैं। बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल, ओके, दैट इज द ग्रुप सॉन्ग। मतलब सॉन्ग ग्रुप में नहीं है, ओके, लेकिन एक जो सॉन्ग है वो सब मिल के गाते हैं, ओके, एक साथ, उसे कहते हैं कोरस। देन 15th वन, लुकिंग एट द रेनबो इंस्टेड ऑफ द रेन। लुकिंग एट द रेनबो इंस्टेड ऑफ द रेन, ये लॉन्ग वर्ड नहीं, एक फ्रेज है। ओके, तो उसे हमें समझना पड़ेगा कि ये फ्रेज का मीनिंग क्या है। ओके, फीलिंग होपफुल इवन व्हेन यू फेस्ड विथ प्रॉब्लम्स। आप मुश्किल में हो तब भी आप आशा अपने अंदर रखते कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ दैट फ्रेज, लुकिंग एट द रेनबो इंस्टेड ऑफ द रेन। मतलब कि आप आशा रखते कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएंगे। ओके, दैट यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ होप। सो आपका जो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है उनके साथ आप आशा रखते हैं कि जो आपके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज़ द, हम कह सकते पॉजिटिव एक वे होता है। ओके, जो प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव होता है कि हाँ जो है प्रॉब्लम, अभी जो दुख की घड़ी है वो आगे जाके चेंज हो जाएगी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ होप, ओके, फॉर चेंजिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। So students, these are all the we can say not hard words but new words that many of the words that you have okay seen earlier, आपको शायद पहले देखे होंगे, लेकिन हम कहेंगे कि ये न्यू वर्ड्स कह सकते हैं, जिसके मीनिंग आपको शायद पता ना हो लेकिन पता चल गए। सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड हार्ड वर्ड्स, ओके, दैट न्यू वर्ड्स विथ देयर simple meanings, and I try a lot to make or more simpler, okay, by giving the answers in Hindi language. Okay, now something that we have in textbook also, the fact of India's, okay, the situation of few birds and few animals in India. So let's have this kind of facts. Let's learn, read it. Have you heard of the great Indian bustard? This bird is found only in India and some parts of Pakistan. Once seen all across the country, it is now listed as critically endangered with only about 200 of them left. मोस्टली इन गुजरात एंड राजस्थान। इंडिया में भी गुजरात और राजस्थान रीजन में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम कहते हैं ना, ये बर्ड पाया जाता है, और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में। और अब तो वो 200 ही बचे हैं। 200 का मतलब कि बहुत ही नज़दीक है उनके अंत में। अब जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड जो लिखा है ना, क्रिटिकली मतलब कि वो सच में अब वो ख़त्म होने आ रहे हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि ख़त्म होने के कगार पे हैं। नॉट ओनली दिस बर्ड, देयर आर मैनी अदर बर्ड्स, देयर आर मैनी अदर एनिमल्स, ओके, दे आर ऑल्सो एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि वो ख़त्म होने को आए हैं, मतलब वो उन एनिमल्स के हम कह सकते हैं कि दूसरी कोई प्रजाति, मतलब उनके दूसरे जैसे उनके एनिमल जैसे दूसरे कोई एनिमल अब है ही नहीं। ओके, विथ अ हॉरिजेंटल बॉडी एंड लॉन्ग बेयर लेग्स, द बस्टर्ड लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच। शायद आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रिच जैसा ही, थोड़ा हाइट में हम कह सकते हैं बड़ा, ओके, ऑस्ट्रिच जैसा ही ये बर्ड दिखता है। इट वेट्स बिटवीन 18 to 20 kilograms, making it one of the heaviest flying birds. Okay, although the government of India once considered naming it our national bird, this bird is still relatively ignored. हमें ये बर्ड को हम कह सकते हैं कि बहुत ही इग्नोर किया है। इसका मेन रीज़न भी है हंटिंग। आपको अगर शायद पता ना हो कि हंटिंग क्या होता है, हंटिंग का मतलब है शिकार करना। देखिए, नेचुरली जब हंटिंग होती है तो वो नेचुरली होती है, उसका हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं दूसरे, जो हम कहेंगे कि कार्निवर्स एनिमल्स, हार्बिवर्स एनिमल्स और ओमनिवर्स एनिमल्स होते हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो हार्बिवर्स एनिमल्स है उनका शिकार कार्निवर्स एनिमल्स करेंगे या तो फिर ओमनिवर्स एनिमल्स करेंगे। लेकिन ये जो हंटिंग होती है वो मेंस मतलब कि ह्यूमंस उन्हें ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं। ये हंटिंग होती है इलीगल। प्लीज़ रिमेंबर टू किल एनी एनिमल, okay, please remember my words, to kill any animal, any bird
इट्स इलीगल इन इंडिया। दूसरे देशों के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग होते हैं, लेकिन इंडिया में किसी भी एनिमल को मारना और किसी भी बर्ड को मारना इलीगल है। अगर आपको कुछ परमिशन दी जाती है तो वो बात अलग है, बट आप जंगल में जाके, हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, नेशनल पार्क्स में जाते हैं, तो वहाँ पे तो किसी भी एनिमल को मारना, और बाहर पे भी, ओके, आपके घर के सामने कहीं पे भी मारना वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। ओके, आगे जाके वो क्राइम भी बनता है। द ग्रेटेस्ट threat to these birds is hunting, as I told you, followed by habitat loss and poaching। मतलब उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं, फिर उनका जो जगह है, जो रहने की उनकी जगह होती है, वो हम ही ह्यूमन्स ही, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रोड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे करते हैं। ओके, टुडे इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन द वर्ल्ड ऑल्सो दैट वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज इन नेम ऑफ द डेवलपमेंट। सो वी आर कटिंग मैनी फॉरेस्ट। हम बहुत सारे जंगल को काट लेते हैं, सिर्फ उसका नाम लेते कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रोड चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ये बनाना है, वो बनाना है। ओके, मेनी एग्जांपल्स आर देयर। सो वी आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अभी आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका फ्यूचर में बहुत इफेक्ट होगा एनवायरमेंट पे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट अदर बर्ड्स फाउंड इन इंडिया फेसिंग सिमिलर थ्रेट्स आर ग्रीन ऑफ दावत एंड द कश्मीर फ्लाई कैचर। ये दूसरे दो बर्ड हैं, वो भी हम कह सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि वो हम कह सकते हैं ख़त्म होने के कगार पे हैं। उनकी पूरी जो जाति हम कह सकते हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। कश्मीर फ्लाई कैचर एंड ग्रीन अवडावत। वी मस्ट रेज अवेयरनेस अबाउट दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड सेव देम बिफोर दे वेनिश फॉर एवर। वो ख़त्म हो जाए उससे पहले हम उन्हें कंजर्व करें, हम उन्हें बचाएं। कंजर्व का मतलब मेरा कहना है कि सेव, हम उन्हें बचाएं, नॉट कंजर्व, बचाएं उन्हें। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि रहने की और अच्छी कंडीशन की जगह दें। एक एग्जांपल ऐसा भी था कि एक वक्त ऐसा था कि जो हमारे गिर के लायंस थे, ये द लायंस ऑफ गिर फॉरेस्ट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इन द वेरी वेरी क्रिटिकल एंड डेंजर सिचुएशन। आई एम टॉकिंग अबाउट गिर लायंस, ओके, नॉट द लायंस ऑफ द वर्ल्ड। गिर लायंस जिसे हम एस्थेटिक लायंस भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने और लोकल पीपल ने इतना सपोर्ट किया और इतना उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया कि उन गिर लाइन्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े, हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से जो बड़े बड़े जो हम प्रोग्राम्स हैं उन्होंने लॉन्च किए। तो आज हम कह सकते हैं कि यस, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी कैन सी गिर लायंस इन गिर फॉरेस्ट। और ये ही गिर फॉरेस्ट है जो बहुत सारे जूस को भी, जो हमारे लायंस है, एस्थेटिक लायंस है, वो देते हैं जू के लिए। ओके, जू एक अलग जगह है जहाँ पे सारे एनिमल्स को केज में, मतलब पिंजरे में रखा जाता है, जहाँ पे हम जाके एन्जॉयमेंट करते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी फॉरेस्ट में जाके अगर रियल एनिमल को नहीं देखा है, तो ये जू एक प्लेस है जहाँ पे हम जाके बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को, फिशिस को देखते हैं। एक्वेरियम भी एक प्लेस है वहाँ पे। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो गिर लायंस है वो अभी हम कह सकते हैं कि बचे हैं, और बहुत सारे अब उनको कह सकते हैं कि नए लायंस अभी हम कह सकते हैं बॉर्न भी हुए हैं, और उनका बहुत अच्छे से टेक केयर किया जाता है। लेकिन जो हमारे इंडिया में अब जो प्रॉब्लम है वो है टाइगर की। नाउ टाइगर इज़ इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। टाइगर फ्यू हंड्रेड्स में ही बचे हैं। ओके, आई विल रिपीट, टाइगर्स आर इन इंडिया दैट आर इन वेरी फ्यू हंड्रेड्स इन नंबर्स। सो वी हैव टू ऑल्सो सेव टाइगर। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, लॉन्च भी किए हैं टाइगर जैसे दूसरे एनिमल्स को। राइनोसॉर्स हैं, हिप्पोपोटेमस हैं। अभी तो आपको सिर्फ नाम ही सुनना आपको थोड़ा लगा कि व्हाट इज़ राइनोसॉर्स, राइनो जिसे कहते हैं, व्हाट इज़ हिप्पोपोटेमस। ये भी तो अभी नाम तो सुना है, वो तो बहुत अच्छा, लेकिन इन फ्यूचर में तो ये नाम भी नहीं रहेगा। ओके, व्हाट इज़ राइनोसॉर्स, व्हाट इज़ दैट hippopotamus, that we will forget. So yes students, I hope you understand and you learn that we have to save animals, local animals, okay, at least the animals which are living very nearby us, our surroundings. So yes, let's start the chapter. And in this chapter we are going to learn about the relation between animals and humans, and animals means birds and animal. तो इस स्टोरी में डिस्क्राइब बहुत अच्छे तरीके से किया कि उनकी भी लाइफ होती है, उनकी भी हम कह सकते हैं कि एन्जॉयमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होती है, उनके भी हम कह सकते हैं कि सारी फीलिंग्स होती है, जैसे कि हमें फीलिंग्स होती है, जैसे कि हम खुश होते हैं, हम रोते हैं, हम उदास होते हैं, हमें हर्ट होता है। सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, उनको भी ये सब महसूस होता है, उनको भी ये सब होता है। सो यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट पेट एनिमल्स ऑल्सो इफ़ यू हैव, and if you don't have any pet animal then no problem, but just take care of the domestic animals that living
वेरी नियर बाय यू। ओके, उन्हें खाना देना भी हम कह सकते हैं कि एक पुण्य का काम हमें कहा गया है। तो यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस, at the starting of the chapter there is a situation. Can you please take him, ma'am? Asked the man in the park. You always take in orphaned animals. Here one person, okay, handling over one kind of bird, okay, that is raven means crow, to ma'am. Ma'am means हमारे जो राइटर हैं, ओके, दिस स्टोरी के, उन्हें देते हैं। नेम ऑफ द राइटर इज एन लियोटन। तो उन वो जो पार्क में थे उन्हें वो दे रहे हैं। एक मैन है, वो एक हम कह सकते हैं ऑर्फन एनिमल को दे रहे हैं। ऑर्फन एनिमल मतलब कि उसके हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स होते हैं तो वो मर चुके होते हैं, मतलब वो अनाथ है। दैट वाई आई लुक्ड एट द बेबी रेवन, इट वॉज टाइनी एंड सीवरिंग। इट वॉज टाइनी मतलब जो बेबी रेवन था, मतलब कि छोटा बच्चा था। रेवन का मतलब जो क्रॉ का हम कह सकते हैं छोटा बच्चा, वो टाइनी है। और सीवरिंग मतलब कि वो काँप रहा है, या तो डर से या तो हम कह सकते हैं कि ठंडी से। इन सम वे माई होम हैड बिकम अ शेल्टर फॉर अनवांटेड एनिमल्स, टेम और वाइल्ड। यहाँ पे दोनों हम कह सकते हैं कि अपोजिट वर्ड से। टेम का मतलब कि नॉट एग्रेसिव, नॉट वायलेंट, एंड वाइल्ड का मतलब होता है वेरी एग्रेसिव एंड वेरी यस वायलेंट। सो अभी जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं कि इन सम वे कुछ तरीके से मेरा घर है वो शेल्टर बन गया है, मतलब घर बन गया है बहुत सारे अनवांटेड एनिमल्स का, जिन्हें मैं चाहती भी नहीं हूँ रखने की, लेकिन वो ऑर्फन होते हैं इसलिए वो रखते हैं, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि जो हमारे राइटर हैं वो एनिमल्स को बहुत ही प्यार करते हैं, ओके, उनकी बहुत ही देखभाल करते हैं। एज आई लुक्ड एट द रेवन आई रियलाइज दैट आई वॉज परहैप्स हिज ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल। रेवन को देख के राइटर को ऐसा लगता है कि उसे मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही उस छोटे से टाइनी बर्ड का एक लास्ट चांस उस सर्वाइवल का। सर्वाइवल का मतलब कि जिंदा रहने का, अदरवाइज दूसरे एनिमल्स उसे मार खाएंगे। दैट्स वाई सी टेक दैट स्मॉल बर्ड, ओके, इनटू हर होम। सो आई ब्रॉट द रेवन होम एंड कॉल्ड हिम चार्ली। तो उन्होंने उनका नाम दिया चार्ली। ही ग्रू टू बी अ वेरी लवेबल पैट। जो बड़ा हुआ और बड़े होकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही लवेबल पैट बना। ओके, पैट का मतलब क्या है कि जो पालतू जिसे कहते हैं, जो आप घर पे लाके उन्हें टेक केयर करते हैं, उन्हें फीड करते हैं, मतलब कि उन्हें खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैट एनिमल। द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड लव्ड हिम। दे वेर डिलाइटेड बाई द वे ही स्वेलड वर्म्स। जो आजू बाजू के नेबरहुड के चिल्ड्रन थे वो बहुत उसे देख के बहुत ही खुश होते थे, डिलाइट हो जाते हैं कि जैसे कि वो अपनी बिग से, बिग का मतलब कि चाँच से जो वर्म्स होते थे, जो हम कहते हैं कि अर्थ के एक लेयर के नीचे जो रहते हैं, उन्हें वो अंदर से स्वेलो करता था, मतलब वो निकल जाता था वर्म्स को, कीड़ों को। दे ऑफन डग वर्म्स टू फीड हिम। मतलब वो बच्चे भी कभी बार वर्म्स को अंदर से बाहर निकालते डग करके, किसके लिए? चार्ली के लिए। चार्ली लव्ड ईटिंग वर्म्स एज वी कैन से एज क्रॉ और वी कैन से रेवन एज ऑमनीवर्स एनिमल्स। ऑमनीवर्स मतलब कि वो हम छोटे छोटे कीड़े भी मकोड़े भी खाते हैं, और हम कह सकते हैं कि दूसरा जो वेजिटेरियन फूड होता है वो भी खाते हैं। ओके, सो दे आर ऑमनीवर्स एनिमल्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑमनीवर्स एनिमल्स। आई हैड अ डॉग जेके। ओके, हियर जो हमारे राइटर हैं उनको एक पेट डॉग भी है, उसका नाम है जेके। He loved animals and had helped me look after quite a few abandoned kittens and ducklings. छोटे छोटे जो kittens और ducklings हैं, डक के जो बच्चे हैं, उनके लिए वो देख कर एक बहुत सारी बार उसने देखभाल भी की है। तो उन्होंने राइटर की बहुत सारी मदद भी की है। और जो हम बेसिकली हम जो कहते हैं कि पेट एनिमल्स में सबसे अगर किसी का फेवरेट होता है तो सबका हम कह सकते हैं कि डॉग ही होता है। यस, many a times we have seen that, yes, many a times in many houses we have a pet dog as our animal, pet animal. So I had a dog GK. He loved animals and had helped me look after quite a few abandoned kittens and ducklings. Now he looked after Charlie. अब चार्ली घर पे आ गया तो उसके देखभाल कौन करता है? ये जो जेके है वो डॉग वो करता है। आई हैड गिवन चार्ली अ बाथ। जेके वुड अलाउ द बर्ड टू स्नगल। इस फोटो में जो स्नगल वर्ड जो है उसका मीनिंग है कि बात लेने के बाद जो बर्ड हैं वो थोड़ी ठंडी महसूस करते हैं। ओके, ऑल द बर्ड्स, उसमें स्पेशली जो क्रॉ होते हैं, जो रेवंस होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि बात लेना पसंद नहीं होता है जनरली। ओके, बहुत सारे बर्ड्स को भी ऐसा होता है। तो बात दिलाने के बाद राइटर से वो जेके के पाउस, जो उनके जो हाथ होते हैं, मतलब उसके जो पैर होते हैं, उसके आजू बाजू वो सो जाता है फॉर वी कैन से वार्म
कंडीशन, वो जो गर्म वातावरण से मिले उसके लिए वो वहाँ पे जो उसे कहते हैं स्नगल. ओके, दैट वी हैव लर्न इन दी न्यू वर्ड्स. Generally, ravens do not like to be given baths, or but our Charlie would sit still with his eyes closed afterwards. लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ली है उसे जो राइटर है हमारे, वो उसे हर रोज नहलाते हैं, तो वो सिर्फ बैठा रहता है आंख बंद करके. ओके, दैट लिटिल बर्ड. यस, आफ्टरवर्ड्स ही वुड स्लीप बिटवीन द डॉग्स पाws. चिके एंड चार्ली वेर वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, अब वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए. हम कह सकते हैं कि रोज ये सब करने से वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं. वन इज डॉग एंड वन इज बर्ड. चार्ली केप्ट अस all very happy. Yes, soon after he learned to talk. जब वो बर्ड धीरे धीरे इमिटेट करके बोलना स्टार्ट मतलब लर्न करता है टू टॉक, ही स्टार्टेड टू इमिटेट मी. मतलब जो हमारे राइटर है उन्हें इमिटेट करते हैं कि कैसे बुलाते हैं एनिमल्स को, कैसे बात करते हैं, तो वो इमिटेट करके वो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बोलना सीखता है. ही वुड कॉल आउट टू जेके इन माई वॉइस एंड पुअर जेके वुड कम रनिंग. फिर वो क्या करता है कि एक गेम खेलता है किसके साथ, डॉग का नाम क्या है, जेके. उसके साथ वो गेम खेलता है कि वो राइटर की जैसी आवाज़ निकाल के उसे बुलाता है. ओके, और वो डॉग है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि ईगरली आता है उनके साथ. ही वुड थिंक आई हैड पुट फूड इन हिज बाउल बट ही वुड फाइंड इट एम्प्टी. वो ऐसा सोचता है, जेके जो डॉग है, पेट डॉग है, वो ऐसा सोचता है कि ऑथर मतलब राइटर ने उसे बुलाया है और वो आके देखता है कि उसे खाना मिलने वाला है. लेकिन जो देखता है तो उसकी जो हम कहते हैं कि जो खाना होता है उसका बाउल वो एम्प्टी है. तो ये मजाक किसके उसके साथ किया, यस किसने, चार्ली ने. चार्ली वुड फ्लाई टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री एंड वुड गिव हिज लाउड बेली लाफ. मतलब फिर ये जब इंसिडेंट होता है, जब चेके जो है वो आता है, देखता है कि बाउल खाली है, तब वो उड़ के ऊपर ट्री के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से बैठे बैठे वो हंसता है. किसके ऊपर हंसता है, यस ये डॉग के ऊपर हंसता है. ठीक है, ऑफ कोर्स वुड बी अपसेट हो जाता, दुखी हो जाता है. ही वुड रिफ्यूज टू प्ले विथ चार्ली फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. फिर वो जो दिन का कुछ भी बाकी बचा होता है उस दिन में, रेस्ट ऑफ द डे में, वो चार्ली से खेलने के लिए वो मना करता है, रिफ्यूज़ करता है. ओके, वो नहीं खेलता है, हम कह सकते हैं कि रूठ जाता है. देन जेके हैड अ पेबल कलेक्शन विच ही डिड नॉट अलाउ एनी वन टू टच. कुत्ते जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि कभी बार पेबल के कलेक्शन करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पत्थर के स्टोन्स के कलेक्शन करते हैं. हाउएवर दिस नेवर स्टॉप्ड चार्ली फ्रॉम गेटिंग नियर दैम. लेकिन वो कोई भी कुछ भी कर ले, चार्ली वो पेबल के कलेक्शन के पास जाके बैठ ही जाता है और उसे हम कह सकते हैं कि टीज करता है, उसे परेशान करता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नो फनी वे. He used the pebble collection to play catch with Jackie. He would slowly step across the lawn towards Jackie's precious collection, turning often to look at Jackie, who would watch his every step. Charlie would pretend to pick up a pebble. मतलब कि जहाँ पे हमारे जो डॉग है जैके, उसका जो पेबल कलेक्शन होता है उसके नज़दीक जाके वो आके उड़ के बैठता है. कौन, चार्ली. फिर वो प्रिटेंड करता है कि अपनी बीक से वो एक पेबल लेता है, ऐसा प्रिटेंड करता है. ये देख के जो जेके होता है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो उसकी तरफ दौड़ता है. यस, ही यूज द पेबल कलेक्शन टू प्ले कैच विथ जेके. ही वुड स्लोली स्टेप अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स जेके's प्रीशियस कलेक्शन, पेबल कलेक्शन, टर्निंग ऑफन टू लुक एट जेके, हु वुड वॉच हिज एवरी स्टेप. वो उसके सारे स्टेप देखता है धीरे से. कौन, जो डॉग है वो जेके, चार्ली के. चार्ली वुड प्रिटेंड टू पिक अप अ पेबल. जेके वुड कम रनिंग. इट सीम्ड एज इफ ही वुड टीयर चार्ली अपार्ट. उतने गुस्से से वो दौड़ के चार्ली के पास आता है कि माने कि उसे वो फाड़ देगा, चीर डालेगा. ओके, बट एज जेके वॉज अबाउट टू टच हिम, जैसे लेकिन जो डॉग है वो जाके उसे टच करने होता है, चार्ली वुड फ्लाई, उड़ जाता है. सिट इन अ ट्री एंड लाफ लाउडली. ट्री के ऊपर बैठ जाता है, ब्रांच के ऊपर, और फिर वहाँ से बैठे बैठे कहता है कि बहुत लाउडली वो हंसता है. सो ये ऐसी गेम्स है जो चार्ली किसके साथ खेल रहा है, जेके के साथ. दे प्लेड दिस गेम अ नंबर ऑफ टाइम्स. ऐसी जो गेम है जो चार्ली और जेके खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत बार खेल चुके हैं. ओके, चार्ली नेवर लेफ्ट अस. ही वुड ऑफन फ्लाई अवे विथ द अदर रेवन्स इन द मॉर्निंग्स. चार्ली ने हमें कभी नहीं छोड़ा है. बहुत बार वो हर सुबह हम कहेंगे मॉर्निंग में बहुत दूसरे रेवंस के साथ उड़ जाता है दूर.
बट एट सनसेट ही नेवर फेल टू कम होम। लेकिन जब शाम हो जाती है, जब सूरज हम कहते हैं ढल जाता है, तब वो घर पे आना भूलता नहीं है। एवरी इवनिंग आई कुड हियर द चिल्ड्रंस कोरस, चार्लीज होम चार्लीज होम। जब शाम हो जाती है तब सारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो बाहर जाके कोरस में, हम कह सकते हैं कि एक साथ चिल्लाते हैं, हम और कहेंगे गाना भी गाते हैं कि चार्लीज होम्स चार्लीज होम। ओके, मतलब कि चार्ली का घर, चार्ली का घर। उससे भी हम कह सकते हैं कि चार्ली को भी हेल्प मिलती है कि हाँ, जहाँ से आवाज़ आ रही है चार्ली का होम, वो उसका ही घर है। ओके, सो चार्ली, यस, एट द एंड चार्ली ब्रॉट अ डेली डोज ऑफ सनशाइन इन टू अवर लाइफ्स। ही टॉट मी टू स्टार्ट लुकिंग एट द रेनबो इंस्टेड ऑफ द रेन। लास्ट में जो हमारे राइटर वो कहते हैं कि चार्लीज के आने से हमारे लाइफ में, हम कह सकते हैं कि डेली डेज ऑफ सनशाइन आए, मतलब कि हर रोज़ नई सुबह होती है उनके लाइफ में। हर रोज़ वो अलग अलग तरीके से एक्साइट होते हैं, अलग अलग तरीके से वो, हम कह सकते हैं कि चार्ली है वो हैप्पीनेस देता है किसको, राइटर को, और दूसरे सारे एनिमल्स को भी। ओके, सो हियर चार्लीज डेली डोज ऑफ सनशाइन, ये टाइटल इस जगह पे हम कह सकते हैं कि सिम्बोलाइज किया गया है कि चार्ली के आने से, उनके घर पे आने से, वो ऑर्फन बर्ड था, उसे हम कह सकते हैं कि हमारे राइटर ने घर पे उन्हें लेके आते हैं उनको टेक केयर करने के लिए। तो उनके आने के बाद उनके घर में, हम कह सकते हैं कि उनके भी लाइफ में अलग अलग, हम कह सकते हैं, खुशियाँ आती है। किसके फॉर्म में, चार्ली के फॉर्म में। ओके, चार्ली को वो जब अपना पेट एनिमल बनाते हैं तब वो और खुश हो जाते हैं, और हर रोज़ उनकी लाइफ में नए नए सनशाइन आते हैं। सनशाइन का मतलब होता है कि हर रोज़ नई नई, हम कहते हैं कि उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ वन बर्ड, और वी कैन से एनिमल्स, चैप्टर ऑन द एनिमल्स। जो उनकी थीम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यस दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनिमल्स। ओके, एंड स्पेशली आवर पैट एनिमल्स। और जो ऑर्फन एनिमल होते हैं उन्हें तो हमें अच्छे से देखभाल करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट अगर घर पे नहीं लाते तो हम हमारे घर के आजू बाजू में उनकी कोई ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि जब जब वहाँ पे वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी, हम कह सकते हैं कि स्थिति में वो वहाँ पे रह सके, उनका खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। हाँ, देर आर मैनी अदर एनिमल्स, ओके, विच आर नॉट गुड। दूसरे भी एनिमल्स है डोमेस्टिक में जो हम कह सकते हैं कि आपको हर्ट कर सकते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उनसे दूर ही रहना है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, until and unless you will not do anything, the animals, okay, which are living nearby us, they are also not doing anything with us। जब तक हम उन्हें, हम कह सकते हैं कि टीज़ नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ गुस्सा नहीं दिलाएंगे, तब तक वो भी एनिमल्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक है, वो आप पे हमला नहीं करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। So we don't have to do anything with those animals। Okay, they are, we can say, speechless, they are homeless, they are very very hungry, they are very very thirsty। तो वो हम सब कुछ समझ के हमें उनके साथ ऐसे ट्रीट करना चाहिए। एटलीस्ट अगर उन्हें कुछ दे ना सके तो हम उसे पत्थर ना मारे, किसी और चीज़ से ना मारे, हम उसे भगाए नहीं। अगर हम उन्हें एटलीस्ट कुछ हेल्प ना कर सके तो उन्हें हम दूसरी भी प्रॉब्लम में ना डालें, वैसा हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। So students, this is the story of, we can say, a bird or a dog and a writer also who loves animals, orphan animals a lot। उन्हें उनकी जब बहुत चिंता थी, बहुत चिंता रहती थी कि यस, ये ऑर्फन है, वो आगे जाके हम कहेंगे कि डेवलप नहीं होकर गए अपने आप को, वो शायद मर जाएंगे, या उन्हें किसी को मार, वो किसी को, उनको कोई मार देगा हंटिंग के ज़रिए। तो वैसे वो अपने घर पे कुछ एनिमल्स को, हम कह सकते कि लाते थे। ओके, उनको टेक केयर करते थे, बड़े करते थे। सो हियर वी हैव अ वंडरफुल स्टोरी अबाउट चार्ली। आई होप you have learned and you have, okay, listen this story. After this video you have to also read the story from textbook so you can understand this story very well. Now for the first session we have to end over here. I hope you understand all the story। तो यस, आपको अच्छे से समझना है, जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग्स का आपको अच्छे से समझने हैं। ओके, सो वी विल मीट इन द सेकंड सेशन with the explanation of textbook, all exercise, question answers, and yes, textbook textual grammar exercise also. Till now, yes, thank you, goodbye.